سوچئے، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، آسمان جو آج اتنا نیلا اور پرسکون نظر آتا ہے، کیا ہوگا جب یہ پھٹ جائے گا، جب یہ کسی جلتے ہوئے تیل یا سرخ گلاب کی طرح لال ہو جائے گا؟ اس دن جب زمین پر موجود ہر شے، ہر چھوٹی بڑی چیز فنا ہو جائے گی۔ ایک ایسی صدی، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کسی انسان اور کسی جن سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے چہرے خود ان کی کہانی بیان کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس خوفناک منظر سے پہلے ایک آواز ہے، ایک ایسی آواز جو صدیوں سے انسانوں اور جناتوں کو مسلسل ایک ہی سوال کر رہی ہے، ایک ایسا چیلنج جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ سوال کیا ہے؟ اور کیا آپ اس سوال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مکہ کی تاریخ میں ایک وقت ایسا تھا جب قریش کے سردار اپنے گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ الرحمن کو سجدہ کرو تو وہ تکبر سے کہتے، الرحمن کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ سورہ الفرقان 60۔ وہ الرحمن جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے نام سے انجان بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب آسمان سے ایک ایسی سورہ نازل ہوئی جس نے مکہ کے پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سورہ الرحمن تھی۔ اسے قرآن کی زینت یعنی عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی عام واقعے کا بیان نہیں، یہ اللہ کی ان نعمتوں کا دل ہلا دینے والا بیان ہے جنہیں ہم ہر روز دیکھتے ہیں پر محسوس نہیں کرتے۔ یہ صرف انسانوں سے خطاب نہیں ہے، یہ اس کائنات کی دو سب سے طاقتور مخلوقات، انسان اور جن، دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کرتی ہے۔ آج ہم اس سورہ کے اس عظیم سفر پر نکلیں گے جو شروع تو اللہ کی رحمتوں سے ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام ایک ایسی حقیقت پر ہوتا ہے جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ سورہ کی شروعات کسی خوف یا ڈر سے نہیں ہوتی۔ سورہ کی شروعات ہوتی ہے اس ذات کے سب سے خوبصورت نام سے، الرحمن، نہایت رحم والا۔ اللہ نے اس سورہ کا آغاز اس بات سے نہیں کیا کہ اس نے آسمان بنائے یا زمین، بلکہ اس نے فرمایا الرحمن، جس نے قرآن سکھایا۔ سوچئے، انسان کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے قرآن کا ذکر کیا، کیونکہ انسان کا وجود اس ہدایت کے بنا بالکل ادھورا ہے۔ پھر فرمایا اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ تصور کیجئے اگر ہماری زبان ہوتی پر ہم اپنے جذبات کا اظہار نہ کر پاتے تو ہماری زندگی کتنی بے رنگ ہوتی۔ یہ بولنے کی طاقت، یہ الفاظ کا جادو، یہ سب اسی الرحمن کی عطا ہے۔ سورج اور چاند دونوں ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں، ایک سیکنڈ کی دیری نہیں، ایک انچ کا فرق نہیں۔ ستارے اور درخت سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ایک ترازو، میزان قائم کر دیا تاکہ انسان انصاف کرے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں بیلنس رکھیں۔ لیکن انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ عادی ہو چکا ہے۔ وہ سورج کو نکلتا دیکھتا ہے، ہوا کو محسوس کرتا ہے، زمین سے اگنے والے اناج کو کھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کا حق ہے۔ حقیقت میں یہ ایک آزمائش کا آغاز ہے۔ اللہ نے نعمتیں دے کر انسان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ کیا وہ شکر ادا کرے گا یا تکبر میں آ کر انکار کر دے گا؟ اور پھر اس آزمائش کا سب سے بڑا سوال سامنے آتا ہے، ایک ایسی آیت جو اس سورہ میں 31 بار دہرائی گئی ہے۔ ہر بار اس کی شدت پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں، انسان اور جن، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال عام نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے۔ سوچئے، اللہ یاد دلاتا ہے تمہاری اصلیت۔ انسان کو کھنکھناتی مٹی یعنی ٹھیکرے جیسی مٹی سے پیدا کیا، وہ مٹی جس میں کوئی جان نہیں تھی، کوئی عقل نہیں تھی، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ دونوں کی فطرت الگ،
दोनों का मादा अलग, लेकिन दोनों घमंड में मुब्तला हैं, जिन अपनी ताकत पर और इंसान अपनी अक्ल पर। अल्लाह अपनी नेमतों के दलाइल देता है। क्या तुमने उन दो समंदरों को नहीं देखा जो एक दूसरे से मिलते तो हैं, लेकिन उनके दरमियान एक ऐसी अनदेखी दीवार बरज़ख है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकते। एक का पानी मीठा और प्यास बुझाने वाला, दूसरे का पानी खारा और कड़वा। दोनों साथ बहते हैं पर कभी आपस में मिक्स नहीं होते। इन्हीं समंदरों से तुम्हारे लिए मोती और मूंगे निकलते हैं। बड़े बड़े जहाज जो पहाड़ों की तरह समंदर का सीना चीरते हुए चलते हैं, ये किसकी ताकत है? ये किसने उन्हें पानी पर तैरने के काबिल बनाया? लेकिन इस सब के बावजूद इंसान और जिन अपनी नाफरमानी पर अड़े हुए हैं। वो देखते सब हैं पर मानते नहीं। रहमत बरस रही है पर इनकार जारी है। एक अजीब सी कशमकश है। खालिक याद दिला रहा है और मखलूक भुला रही है। लेकिन क्या ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा? क्या इंसान यूं ही नेमतें इस्तेमाल करके इनकार करता रहेगा? नहीं, एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसी आयत जहां वक्त रुक जाता है, जमीन की धड़कन थम जाती है। कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। इस जमीन पर जो कुछ भी है सब फना होने वाला है और बाकी रहेगी तो सिर्फ तेरे रब की जात जो जलाल और इकराम वाली है। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, बड़े बड़े महल, ताकतवर हुकूमतें, घमंड से चलने वाले लोग, आग से बने जिन, समंदर, पहाड़, तारीख की अजीम तरीन शख्सियतें, सब खत्म। एक सन्नाटा छा जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। और फिर आएगा वो दिन जब आसमान उस तरह फट जाएगा जैसे सुर्ख तेल या लाल गुलाब। आसमान का रंग डर के मारे बदल जाएगा। उस दिन जिन और इंसान दोनों को ललकारा जाएगा। ऐ जिन और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीन की हदों से बाहर निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ। तुम बिना अजीम ताकत के नहीं निकल सकते। कहां भागोगे उस दिन? कोई पनाह की जगह नहीं। मुजरिमों को उनके चेहरों से पहचान लिया जाएगा। उनसे कोई सवाल नहीं होगा। बस उनकी पेशानी के बालों और पांव से पकड़कर उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये वो जहन्नुम है जिसे इंसान मजाक समझता था। खौफनाक आग और उबलते हुए पानी के दरमियान उन्हें चक्कर लगवाए जाएंगे। ये अल्लाह की अदालत का सबसे जलाली मंजर होगा, जहां सिर्फ इंसाफ होगा। एक वक्त था जब अर्रहमान की रहमत पुकार रही थी, आज उसके जलाल का वक्त है। लेकिन ठहरिए, अर्रहमान की रहमत उसके गुस्से पर हावी है। जो इंसान और जिन आज इस दुनिया में अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, जिसने अकेले में अल्लाह का खौफ महसूस किया और अपने नफ्स को गुनाह से रोके रखा, अल्लाह ने उसके लिए एक नहीं बल्कि 2 जन्नतों का वादा किया है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। तसव्वुर कीजिए उन जन्नतों का, घनी और हरी भरी शाखों वाले बाग। उन बागों में 2 चश्मे, स्प्रिंग्स लगातार बह रही होंगे। हर फल की 2 किस्में होंगी। जन्नती ऐसे फर्शों पर देख लगाए बैठे होंगे जिनके अस्तर कीमती रेशम के होंगे और फल इतने करीब होंगे कि बैठे बैठे तोड़ लिए जाएं। खैमे होंगे जिनमें ऐसी पाकीज़ा और खूबसूरत हूरें होंगी जिन्हें न इससे पहले किसी इंसान ने छुआ होगा न किसी जिन ने। वो ऐसी होंगी जैसे याकूत और मूंगे। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। उन 2 आला मकाम वाली जन्नतों के नीचे 2 और जन्नतें होंगी, गहरे हरे रंग की, ताजा और खिली हुई। उनमें उछलते हुए पानी के चश्मे होंगे, खजूरें, अनार और हर तरह की नेमतें। अल्लाह मुसलसल पूछ रहा है, फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आज उस खौफनाक हिसाब के दिन ये बाग, ये सुकून, ये जन्नत क्या कम नेमत है? दुनिया में तुम डर गए थे, आज तुम्हारे लिए ऐश ही ऐश है। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? लेकिन मेरी और आपकी रूह को हिला देने वाला असल मंजर तो अभी बाकी है।
जन्नत मिल गई, नहरें मिल गईं, महल मिल गए, लेकिन सबसे अजीम नेमत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ और ज्यादा दूं? जन्नती हैरान होकर कहेंगे, या अल्लाह, क्या तूने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया और आग से नहीं बचा लिया? फिर हिजाब हटा दिया जाएगा, पर्दा उठा दिया जाएगा और उस कायनात के बनाने वाले अर्रहमान और अर्रहीम का दीदार होगा। उस जात का जलवा सामने होगा जिसने समंदर, आसमान और ये कायनात बनाई थी। जन्नतियों को कोई चीज ऐसी नहीं दी गई होगी जो उन्हें अपने रब के दीदार से ज्यादा महबूब हो। यही वजह है कि सूरह अर्रहमान का इख्तिताम जन्नत के फलों और नहरों पर नहीं होता, बल्कि इस खूबसूरत सूरा का इख्तिताम उस रब की अजीम जात की तारीफ पर होता है। एक रूहानी उरूज, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बड़ी बरकत वाला है तेरे रब का नाम जो जलाल और इकराम वाला है। यहां आकर अल्फाज खत्म हो जाते हैं, यहां आकर हर धड़कन उस अर्रहमान के आगे झुक जाती है। यहां आकर तस्लीम कर लिया जाता है कि या अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटला सकते। सूरह अर्रहमान हमें सिर्फ जन्नत और दोज़ख का हाल नहीं बताती, ये हमें हमारी हकीकत दिखाती है। हम दुनिया की इस भाग दौड़ में दौलत, शोहरत और लालच में उस जात की नेमतों को भूल चुके हैं जिसने हमें खनखनाती मिट्टी से एक बेहतरीन इंसान बनाया। हदीस में आता है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सूरह अर्रहमान सुनाई तो वो खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन तुमसे बेहतर जवाब देने वाले थे, जब भी मैं इस आयत पर पहुंचता तो तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? तो जिन कहते थे, या रब्बना, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, तेरे ही लिए सारी तारीफ है। आज इस वक्त हमें अपना मुहासिबा करना है। क्या हमने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया? क्या हमने उस दिन की तैयारी की जब ये आसमान फट जाएगा? दिन और रात का गुमान छोड़िए, अपने खालिक से अपना रिश्ता जोड़िए। वो आज भी अर्रहमान है, वो कल भी अर्रहमान रहेगा। उसके दरवाजे आज भी तौबा के लिए खुले हैं। अपना ईमान मजबूत रखिए, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।